وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الى غیر نہایہ. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرا نثار آقا. غم ہو گئے بے بندہ تیرا نثار آقا. بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سوار آقا. ڈوبی جاتی ہے ناؤ میری دیہات کی ہوں میں پار آقا. غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرا بے نثار آقا. حضرات محترم، ابھی میں نے جس خطبہ مسلمہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور یہاں کے بہت ہی اسپیشل پنڈت ایودھیا کے کہتا ہے، منگلم بھگوان وشو گرے سمنگلم تھنگ منگلم ودھاتا فی منگلم لا الہ الا ہری پاپن. ڈھانچہ نور محمدی، ڈھانچہ نبی رسول، پہلا کلمہ پڑھنا دویم کلمہ قبول. نانک گئے سب بھول. جس طرح تمہاری نظر شیشے کو پار کر جاتی ہے اسی طرح ہمارے نبی ساتویں آسمان کو پار گئے. آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اسی لیے آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کیونکہ ہنسنا شیطان کی عادت ہے اور مسکرانا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ آج یہ سنت ہے، کیونکہ شادی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی نکاح کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا سمجھو مجھ میں سے ہے. آج ہم لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اور آج کے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہم لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں. پہلے تو ہم میلاد پاک کو اپنے دروازے پر رکھتے ہیں، اپنے دروازے پر میلاد پاک رکھتے ہیں، اور میلاد پاک ہونے کے بعد جب مولانا صاحب یہاں سے میلاد کر چلے جاتے ہیں تب آپ لوگ یہاں پر گانے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ جب پہلے میلاد پاک ہوئی، جب تم پہلے سنتوں پر عمل کیے تو پھر تم کیوں ناجائز کام کیے؟ ناجائز کام تمہیں کرنا تھا تو میلاد پاک کو کیوں سجائے؟ تم کو ناجائز کام کرنا تھا، تم اپنے گھر کیوں نہ آرکیسٹرے کو منا لیے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس گھر میں ڈھول بازے ہوتی ہے اس گھر میں کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں آتی، اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دور چلی جاتی
आती है, जिस घर में फिल्में चलती है उस घर से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें नहीं आती, उस घर से अल्लाह तबारक व तआला अपने नेमतों को उठा लेता है। और ये मिलाद पाक में आज हम लोग बैठे हुए हैं, जिस मिलाद पाक में बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों तुम ये समझ जाओ जिस मिलाद पाक में तुम बैठे हुए हो उसमें तुम नहीं बल्कि मेरे फरिश्ते भी उसमें बैठे हुए हैं। बल्कि जब एक रास्ते से तालिबे इल्म सफर करते हैं तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से फरमाता है, ऐ फरिश्तों इस तालिबे इल्म की कदम के नीचे तुम पैरे बिछा दो, तुम मखमले बिछा दो। और ये तो तालिबे इल्म की बात है, यहाँ पर जब इमाम अपने पैर को रखे तो उसकी क्या बुलंदी होगी, उसकी क्या मर्तबा अला होगा। ये तो इमाम की फजीलत है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े पढ़े बहुत से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या हबीब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने बताया कि अयोध्या के सबसे स्पेशल पंडित कहता है, मंगलम भगवान विष्णु गणेश मंगलम भूमि मंगलम विधाता फी मंगलम ला इलाहा इल्ला हम्मे पापन राजा नूर मोहम्मद राजा नबी रसूल पैदा करना पड़ना बेन कर्म कभी नाना बे सब भूल। जिस तरह तुम्हारी नजर शीशे को पार कर जाती उसी तरह हमारे नबी सातवें आसमान को पार कर गए। ये तो पंडित शादी के मौके से कहता है, तो मैं दुरूद शरीफ के बातों पर मैं आप लोग को ले चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला और उनके फरिश्ते उन पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। एक मर्तबा आइए और रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े बहुत बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या हबीब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शख्स था जिसका एक ही बेटा था। उसका वालिद साहब दिन में नशे की हालत में रहते हैं और रात में जिक्र इलाही किया करते हैं और दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। तो जब उसके वालिद साहब जिक्र इलाही और दुरूद पाक से फारिग होते तो वो सोते तो उनका बेटा जो था उनके पास बैठ करके दुरूद पाक पढ़ा करता था और कुरान पाक की आयतें पढ़ा करता था। तो वो जब कुछ महीने गुजर गए तो उसके वालिद साहब का जिस्म रूह जुदा हो गया। तो हर रोज उसका बेटा था जो अपने वालिद साहब को, जब उसके वालिद साहब सो जाते तो उसका बेटा था अपने वालिद साहब को दस्तक देता, अपने वालिद साहब को पुकारता कि ऐ मेरे वालिद साहब। उसके वालिद साहब उसके एक शौक पर, उसके एक सुखन पर, उसके एक बात पर तुरंत बोलते। तब इसी तरह जब उसके वालिद साहब का जिस्म से रूह जुदा हो गया तो उस दिन वो शख्स दुरूद पाक पढ़कर जब फारिग हुआ, फारिग होने के बाद वो बोलता है अपने वालिद साहब से, ऐ मेरे वालिदे ग्रामी, क्या आप मेरे बातों को सुन रहे हैं? वो शख्स जब उसके वालिद साहब के जिस्म में रूह जुदा रोम रहेगी तब न उसके वालिद साहब बोलेंगे। तो वो अदब के लिए अपने वालिद साहब के पैर को दाबने के बाद जब उसके वालिद साहब न बोले तो अपने वालिद साहब के रोखे जेबा से यानी उनके चेहरे से चद्दर को हटाया। चद्दर को हटाने के बाद देखता है कि मेरे वालिद साहब का चेहरे अनवर जो नूर की तरह झलक रहे हैं, नूर की तरह उनका पूरा जिस्म है। तो अपने वालिद साहब के चेहरे पर फिर से चद्दर को डाल दिया और डालने के बाद सोचा कि मैं इस वक्त मैं किनसे कहूँ, मैं अपनी बातों को किनके सामने रखूँ, किनके सामने अपनी बातों को दरियाफ्त करूँ। जब वो इस बात को सोचा तो वो सो गया। जब सोता है तो क्या ख्वाब में देखता है मेरे वालिद साहब के पास 2 बुजुर्ग आए हुए हैं और आने के बाद वो मेरे वालिद साहब के रूखे सेबा और उनके पूरे तन पर अपने हाथ को फेरते हैं। जब हाथ को फेरते हैं
तो उनका पूरा जिस्म सफेद हो जाता है। फिर से वो शख्स घबरा गया। घबराने के बाद वो नींद से बेदार होकर तुरंत आया, अपने वालिद साहब को देख रहा है तो उनके वालिद साहब का पूरा जिस्म कालापन हो गया है, उनका रूह सेवा भी कालापन हो गया है। वो सोचता है ये कैसी बात है, ये क्या माजरा है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिद साहब को हर रोज आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करते, वो दुरूद पाक पढ़ा करते और जिक्र इलाही भी किया करते। अल्लाह तबारक व तआला ये कैसी माजरा है, मेरे वालिद साहब का पूरा रूह सेवा कालापन हो गया है। फिर से वो सो जाता है और सोने के बाद से फिर से वो ख्वाब में क्या देखता है, दो बुजुर्ग आने वाले आते हैं और आने के बाद वो उनके वालिद साहब के जिस्म पर अपने हाथ को फेरते हैं। फिर से वो शख्स घबरा गया। घबराने के बाद फिर से वो जाता है अपने वालिद साहब से रुख ज़ेबा से वो चद्दर को हटाता है और हटाने के बाद से क्या ही खूब देखता है, मेरे वालिद साहब का कुछ ही देर पहले उनका पूरा जिस्म कालापन था, इस वक्त उनका पूरा जिस्म नूर की तरह झलकने लगा। ये तो दुरूद पाक की फजीलत है, ये दुरूद पाक की फजीलत है। अब हम लोग को चाहिए कि कितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि एक मरतबा दुरूद पाक की पढ़ने की फजीलत, फरिश्ते उन पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो हम लोग की चाहिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़े, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मादन जुन वल करम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज का ये रिवाज बन चुका है, आज का ये माहौल बन चुका है कि शादियों के दिन लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदियां रखा करती हैं, वो अपने हाथों पर मेहंदियां रखती हैं और वो अपने चेहरे की नुमाइशें किया करती हैं। आज वो शख्स अपने चेहरों को नुमाइशें किया करते हैं। तो आगे इसी हवाले से मैं आप लोग को कुछ और आगे ले चलूं। एक लड़की थी जिसका इंतकाल हो चुका था, कब्रिस्तान में बस एक ही मुर्दे की वहां पर कब्र थी। वो शख्स जब जिंदा थी तो अपने पूरे चेहरे को नुमाइशें किया करती थी और आंख की बरौनियों को वो सेट किया करती थी और अपने होठ पर लिपस्टिकें भी लगाया करती थी और अपने नाखून पर नाखून पॉलिश भी लगाया करती थी और अपने जुल्फे निकाल करके चला करती थी। वो अपने सर पर दुपट्टे न रखा करती थी। उस लड़की का जब इंतकाल हुआ और जब इंतकाल होने के बाद फरिश्ते आए, उनसे सवाल जवाब किए। सवाल जवाब करने के बाद वो कोई सी जवाब न दे सके। तो जब वो एक शख्स उस कब्रिस्तान के तरफ से गुजर रहा था तो वो लड़की आवाज दे रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो लड़की ये आवाज दे रही थी, ये सौत कर रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो शख्स हैरान हो गया, वो परेशान हो गया, वो घबरा गया और सोचा कि ये कौन शख्स है जो मुझे पुकार रहा है और बोल रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो शख्स परेशान होकर के सोचा कि मैं चलूं और गांव में बताऊं। वो शख्स गया और गांव में कुछ लोगों से बताया। बताने के बाद वो गांव वाले लोगों को लेकर आया और कब्रिस्तान में लेकर आने के बाद जब वो शख्स आए और दखले अंदाजी किए और उनके बातों को वो सुने तो लड़की ही की आवाज थी। जिस लड़की की 2 दिन पहले इंतकाल हुआ था, उनको कब्र में लिटाया गया था, वही वो लड़की आवाज दे रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो लोग गाँव वाले लोग सोचे कि मैं चलूं, पहले इमाम साहब से मैं पहले इजाजत ले लूं, उनसे मैं मसला पूछ लूं। जब गांव वाले आए और इमाम साहब के पास आने के बाद जब वो मसला पूछने के बाद वो गए कब्र को खोदने के बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे एक चद्दर दे दो। तो जब गांव वाले इस बात को सुने तो एक चद्दर को उस लड़की को दे दिए। बोली वो लड़की इस कब्र में फेंक दो। जब चद्दर को कब्र में फेंका गया, वो लड़की अपने पूरे जिस्म को उसी चद्दर से लिपेट ली। लिपेटने के बाद वहां से वो बहुत ही तेजी के साथ वहां से भागे और भागने के बाद अपने घर के एक रूम में जाकर वो छुप गई और अंदर से खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर ली। लोगों ने सोचा ये कैसी माजरा है, ये क्या बात है कि जो लड़की अभी चिल्ला रही थी, जो अल्लाह के अज़ाब में अभी मुब्तला थी, वो बोल रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वो कैसी
बात, ये कैसी माजरा है। वो लड़की यहाँ से बहुत तेजी के साथ भगी। जब वो लोग इस बात को सोचे तो उसके घर आए और आने के बाद वो जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दिए और बोले कि अरे खातून, तुम दरवाजा खोलो, तुम खिड़कियां खोलो। वो खातून बोलती है अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप लोग मुझे देख नहीं सकते। तो वो औरत बोले आप लोग मुझे देख नहीं सकते। तो लोगों ने कहा ये कैसी बात है, ये क्या बात है कि ये बोल रही है आप लोग मुझे देख नहीं सकते। वो बोले कि लोगों बोले कि हम लोग देखना चाहते हैं, तुम दरवाजा खोलो। वो बोली कि मैं नहीं खोलूंगा, आप लोग मुझे देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप लोग मुझे देख करके बेहोश हो जाएंगे। लोगों ने सोचा ये कैसी बात कर रही है। फिर से एक शख्स बोला मैं, तुम खोलो, मैं देखने के लिए राजी हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो कौन सी चीज है जिसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो शख्स जो बोले वो बहुत ही नेक परहेजगार मुत्तकी थे। जब वो लड़की दरवाजा खोली तो लोगों ने पूछा, जो लोगों ने देखा कि न उसकी बाल थी, न उसकी आंख की बरौनियां थी, न उसकी होठ थी, न उसकी नाखूनें थी, बल्कि उसके जिस्म का जिस चीज की वो नुमाइशें किया करती थी उस चीज को फरिश्ते ने खींच लिया। लोगों ने पूछा अरे खातून जन्नत, बताओ तुम्हारे सर की बाल क्या हो गई। तो खातून बोलती है अल्लाह ऐ लोगों तुम सुन लो, क्योंकि जब मैं जिंदा था, मैं दुनिया में था तो अपने बालों की नुमाइशें किया करता था, मैं अपने बालों को खोलकर घुमा करता था, इसलिए मेरे बालों को फरिश्तों ने नोच लिया है। फिर से लोगों ने कहा ऐ खातून ये तुम्हारी आंख की बरौनी क्या हो गई। वो खातून बोलती है कि इसलिए मेरे आंख की बरौनी नहीं है कि जब मैं दुनिया में था तो आंख की बरौनी को भी नुमाइश किया करता था, आंख की बरौनी को भी सेट किया करता था, इसलिए फरिश्ते हमारे आंख को भी खींच ले। फिर से लोगों ने कहा ऐ खातून बता तुम्हारे होठ क्या हो गए। वो खातून बोलती है कि जब मैं दुनिया में था तो अपने होठ पर होठलाली लगाया करता था, इसलिए फरिश्ते हमारे होठ को भी खींच ले। वो लोगों ने कहा तुम्हारे हाथ के नाखून क्या हुए। वो खातून बोलती है इसलिए मेरे हाथ के नाखून नहीं है कि जब मैं दुनिया में था हाथों पर नाखून पालिश लगाया करता था, इसलिए फरिश्ते हमारे हाथ से नाखूनों को खींच लिए। बल्कि नुमाइश कर सकती है वो लड़की, किस लिए कर सकती है। नुमाइश तो करना हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, जहां तक है उसको हराम करार कर दिया गया है। बल्कि वो नुमाइश कर सकती है तो वो अपने शौहर के लिए नुमाइश कर सकती है। वो शख्स, वो औरत अगर नुमाइश करना चाहती है तो अपने शौहर के लिए नुमाइश करना चाहती है। अगर वो औरत मेकअप करना चाहती है तो अपने शौहर के लिए राजी करने के लिए मेकअप लगा सकती है। वो अपने शौहर के लिए बस वो करना जायज है। अगर ये दूसरे के लिए हुआ तो ये ना जायज है, ये हराम है। अब मैं एक माँ और बाप, एक बेटे के वाक्य को अब मैं आप लोग के सामने रख करके रुखसती हो जाना चाहता हूँ। एक शख्स था और एक औरत और उसका एक शौहर और एक उसका बेटा, 3 लोग घर में थे। वो छोटा बच्चा था। एक माँ अपने बेटे की परवरिश के लिए कितना ज्यादा परेशानियों को उठाती है। जब बेटा पेशाब कर देता है तो माँ उस पेशाब की जगह सो जाती और अपने बेटे को अपने सीने पर सुला लेती। जब वो माँ उस खाने से परहेज करती जिस खाने के बाद बेटे को परेशानी हो जाए, माँ उस खाने से परहेज करती। जब उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो तब तक वो लड़का थोड़ा जवान हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका एज थोड़ा बढ़ जाता है। तब तक जब उसका वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो बस एक उसकी माँ बचती है और एक उसका लड़का। उसकी माँ सोचती है कि एक मेरा शौहर था जो मेरे साथ था, एक तो बस यही मेरा एक लड़का बचा। वो माँ अपने बेटे की परवरिश के लिए कितना ज्यादा मुशक्कत में पड़ती है, कितना ज्यादा परेशानियों में मुब्तला होती है। अगर घर में एक वक्त की खाना नहीं रहती तो माँ उस किसी घर से लेकर आते हैं मांगकर, पहले अपने बेटे को देती तब वो खाती है। जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ सोचती है एक यही लड़का है जो मेरा
बुढ़ापे का लाठी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा बनेगा। वो लड़का जब बड़ा होता है तो किसी लड़की के प्यार में मुब्तला हो जाता है, किसी लड़की के प्यार में जारी हो जाता है। वो लड़का जब किसी लड़की के प्यार में जारी हो जाता है तो सोचता है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी माँ मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करती है, वो उसका कोई हद नहीं, मेरी माँ मुझसे इतना मोहब्बत करती है जिस हद को वो पार कर दी है। अगर मैं जो चीज अपने माँ से तलब करूंगा, माँ उस चीज को लाने के लिए तैयार हो जाएगी, माँ उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो शख्स जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कि अरे माँ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती है? उसकी माँ बोलती है हाँ हाँ बेटा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब वो लड़का इस बात को अपनी माँ के सामने रखता है, बोलता है अरे मेरी माँ क्या तू एक काम को कर सकती है? उसकी माँ बोलती है मैं एक काम को नहीं बल्कि 1000 काम को करने के लिए तैयार हूँ। वो शख्स वो लड़का अपनी माँ से बोलता है अरे मेरी माँ मेरी शादी करा दे। उसकी माँ बोलती है मैं तेरा शादी करा दूंगा। वो लड़का बोलता है हर लड़की से नहीं बल्कि एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उस लड़की से मेरा शादी करा दे। वो उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा, मैं इस बात पर भी राजी हूँ, मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा। जब कुछ दिन गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए तो उसकी माँ अपने बेटे की उसकी माँ अपने बेटे की निकाह उस लड़की से करा दी। उस लड़की से निकाह कराने के बाद जब उसकी बीवी अपने घर आई, कुछ सारे अपने घर गुजारने के बाद वो सोची कि मेरा शौहर मेरे गुलाम के हैसियत से हो गया है, मेरा शौहर मेरे नौकर की हैसियत से हो गया है, जो मैं कहूँगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी बीवी बोलती है ऐ मेरे शौहर नामदार, क्या तू मुझसे मोहब्बत की दावा करता है? उसका शौहर बोलता है हाँ हाँ मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो उसकी बीवी बोलती है ऐ मेरे शौहर नामदार, तुम मुझसे अपनी माँ से दूर अलहदा हो जाओ, तुम अपनी माँ से दूर चल करके एक घर बना लो जिसपे हम और तुम आराम की जिंदगी गुजारेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी माँ से मिलने ना आना, तुम अपनी माँ से हर रोज मिलने आना। उसका शौहर अपनी बीवी के प्यार में मुब्तला हो गया था, अपनी बीवी के प्यार में जाहिर हो गया था। जब वो इस बात को सोचा, अपनी बीवी की बात को अपने दिल में बैठा लिया था, अपनी जहन में बैठा लिया था, वो अपनी माँ के मोहब्बत को भूल गया था। जिस माँ अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में पालती है, क्या वो माँ की मोहब्बत नहीं है? जब वो अपने घर वहां से दूर बसा लिया, दूर बसाने के बाद वो क्या करता है, जब वो दूर घर बसा लेता है वो सोचता है कि मैं अब चल करके मैं तो अपनी माँ से बाप से भी नाराज रहा, मैं अपने बाप से भी नाराज हूँ, अपनी अब मैं चल करके अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बीवी और मेरे बेटे क्या खाएंगे? वो इस बात को सोच करके वो सऊदी में उसको जॉब मिल गया। जब वो सऊदी गया जॉब करने के लिए, वहां पर कुछ अरसे गुजार लिया, उसके पास कुछ पैसे हो गए तो अपनी बीवी और बेटे को भी वहां पर बुलाया। वहां पर बुलाने के बाद वो सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा आमदनी हो गए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए। वो इस बात को सोच करके वो सोचा कि अब मैं चल करके हज कर लूं। जब वो हज करने के लिए रफ्ते सफर बांधा, अपनी बीवी और अपने बेटे को भी लेकर के जब हज करने के लिए गया तो अरफात के मैदान में जाता है और देखता है क्या हर हाजी के आंख से आंसू बह रहे हैं, एक मेरे ही आंख से आंसू नहीं बह रहे। ये कैसा माजरा है? क्या मेरा दिल इतना सख्त हो गया है, मेरा दिल इतना मोम हो गया है? वो शख्स इस बात को सोच करके एक सामने एक हाजी साहब बैठे थे जो बहुत बुजुर्ग थे, वो जाकर से उनसे पूछता है ऐ हाजी साहब बताइए यहाँ पर हर हाजी के आंख से आंसू बह रहे हैं, एक मेरे ही आंख से आंसू क्यों नहीं बह रहे? वो हाजी साहब बोलते हैं कि या तो तुमसे तुम्हारे बाप नाराज होंगे या तो तुमसे तुम्हारी माँ नाराज होगी, इसीलिए तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बह रहे हैं। वो इस बात को सोचा कि बोला कि हाँ हाँ मैं अपने माँ से भी नाराज रहा और अपने बाप से भी नाराज रहा। वो हाजी साहब बोलते हैं अगर तेरी माँ हो तो तुम चल करके पहली सफर में तुम रास्ते सफर बांधो और बांधने के बाद तुम अपनी माँ से जाकर के गुनाहों से माफी मांग लो और अपने माँ के गले लग जाओ।
جب وہاں سے رفتے سفر گھر کے لیے باندھا تو اپنے گھر کو بھی وہ بھول گیا تھا. بس وہ جانتا تھا کہ میرا گھر اس محلے میں ہے, میرا گھر اس علاقے میں ہے. جب وہ آیا وہاں پر آنے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھا, اے لوگوں یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے, وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اسی وہ مڑئی میں رہتی ہے, اسی وہ مکان میں رہتی ہے, کوئی انہیں کھانا دیتا ہے تو وہ کھا لیتی ہے, اگر کوئی کھانا نہیں دیتا تو وہ بھوکے ہی رہتی ہے. وہ گیا وہاں پر جانے کے بعد ان کی ماں کی آنکھ کا نبینا ہو گئی تھی, بس وہ کان سے سن سکتی تھی. وہ وہاں پر گیا اور دروازے پر دستک دیا. ماں اپنے بیٹے کی آواز کو پہچانتی تھی. جب وہ اتنا آواز دستک دیا تو ماں اپنے بیٹے کو منہ پر, اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ کو رکھا. ہاتھ رکھتے ہی اس کے بیٹے کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گیا. یہ تو ماں کی محبت ہے. جب آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوا تب تک اس کی ماں بولی, اے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ اے بیٹے تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ کیا تم اتنا زیادہ پیار میں مبتلا تھا؟ تو اپنی بیوی کے پیار میں مبتلا تھا. میں تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں پالے, تو میرے پیار میں مبتلا نہیں ہوگا. میں تمہارے لیے در در بھٹکتا تھا, میں تمہارے آوازوں کو سننے کے لیے در در بھٹکتا تھا. جب وہ اس بات کو بولی تو وہ سچ بولتا ہے. میں گیا تھا حج کرنے کے لیے. جب عرفات کے میدان میں گیا وہاں پر دیکھا ہر حاجی کے آنکھ سے آنسو بہ رہے, ایک میرے آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے تھے. اس کی ماں بولی, اے بیٹے پھر تو جا. وہاں پر جانے کے بعد جب وہ عرفات میں گیا, عرفات میں جاتے ہوئے اس کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گیا. اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر ہم کو بولنے میں کہیں کسی طرح کی لفظ صاحب ختم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.